Hey everyone, welcome. How are you guys? Am I audible? Tarun ji, Akhil ji, and we have Veronica Vidya ji. Welcome everyone. How are you this evening? Let me know in the chat section. Are you guys able to chat? Okay. I think now the chat is open. You can use the chat. Welcome Veronica ji, Akhil Puneet ji. Welcome, welcome. Tarun ji. So So, guys, first of all, I would like to thank you for your patience because many people tried and they left because the session was not started. So, this instant gratification is something that is, keeping the people behind in the game of success. So, are you playing the game of success? Just type GOS, game of success. And this game of success is, believe me, is not easy. Sandeep Maheshwari says, Asan hai, but it is not easy. It is tough, but we need to be committed to play this game of success. Thank you very much. हम गेम ऑफ सक्सेस खेल रहे हैं यहाँ पर and I welcome two more people, Gurpal Sandhu ji and Pramod Kumar ji. And this is a support session, guys, and we will have a support session. But before that, I want to give a small presentation. We are going to launch a new challenge on 20th April, 9 p.m. So I'm excited that you should attend that in case you need it. And in case if you have any friend, if they need it, please bring them here. Please bring them because first time I am doing this 7 day digital coach funnel challenge. What I realized that if your system is not ready, you will have doubts. I had doubts. If your funnel is not ready, if your social media is not optimized, you are making videos. But if your videos are not giving you leads, then it is not useful. Gopal ji, समझ में आ रहा है? आ रहा है. Very good. Thank you very much. Okay. So if your videos are not giving you leads, it is not beneficial. And if even if leads are coming, then it is also very difficult कि सारी leads को हम संभाल के रखें. Are we all okay in Hindi? Tell me. Okay in Hindi. So if you guys say all okay in Hindi, if you are okay in English, type English. If you are okay in Hindi, type Hindi. So Hindi is the first preference. Okay, little bit I speak English. Akhil, oh, awesome, Akhil ji, I know you can. Veronica Vidya English. Okay, good guys. तो दोनों रखते हैं. So Veronica, are you not able to understand Hindi at all? Tell me. So I don't want to avoid anyone. So Gurpal ji, oh that's great. So I will go and mix. So what happens जब हमारा डिजिटल दुनिया में हम सफल होना चाहते हैं, राइट? सो आई एम श्योर कि हर बंदा यहाँ पे डिजिटल दुनिया में ही सफल होना चाहता है, राइट? सो टाइप डीडी डिजिटल दुनिया, राइट? दीपक वागी जी, स्वागत है आपका, वेलकम. उमेश साहू जी, वेलकम. सो दैट इज डिजिटल दुनिया. लाइक इवन इफ यू आर डूइंग yoga classes, even if you are doing, okay, let's do one thing na. What is your category of business? What is your niche? Let me know in the comment section में आप क्या बिजनेस है आपका. चैट बॉक्स में बताइए जरा, शॉर्ट में, दो शब्दों में उन्हीं की बात कर लेते हैं. इंस्टेड ऑफ मैं इमेजिन करूं चीजें, यू टेल मी व्हाट इज योर निश. आपका क्या बिजनेस है? सो प्रमोद कुमार जी, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन. प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है, ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, बट प्रॉपर्टी इज फाइन. ठीक है. सो प्रॉपर्टी हम करते हैं बिजनेस. और गोपाल जी, अखिल जी, तरुण जी, उमेश जी, दीपक जी, वेरोनिका, विद्या, आई कैन कॉल विद्या, आई थिंक दैट वुड बी बेटर. सो या, सो you do property business, or you do direct selling business, or you do digital coach business, you are a freelancer, or you are a doctor, or you are a professional harmony coach. Okay, so you make content or you run ads. I have seen कि लोग रन एड
एड रन करते हैं बट उनका फनल रेडी नहीं होता है, और ये मेरे साथ हुआ है। सो मैंने खुद को भी देखा है, दूसरों को भी देखा है, फनल रेडी नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी लीड्स सही डायरेक्शन में नहीं जाती हैं एंड वी लूज द लीड्स। सबसे बड़ा क्या है हमारा चैलेंज कि लीड्स जनरेट करनी है, वो हो भी जाती हैं कई बार, देन वी डोंट हैव अ सिस्टम टू कीप देम। तो वो उस सिस्टम के बारे में मैं छोटा सा बताने वाला हूँ कि हम वो सिस्टम बनाने वाले हैं टूगेदर फ्रॉम 20th अप्रैल। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सो इफ यू आर ओके विद दैट, let me know in the chat box, type okay or say yes or whatever, right? So I'm going to talk about importance of proper funnel for digital coaches, or I can say not digital coaches, or we can say digital success, whatever is your business. So specifically I will talk about digital coaches, but it is applicable for digital success as well. If there is any mistake, just avoid or let me know in the chat box. I'm not perfect, but my intention is that I have seen people, they don't have a funnel, and because of that they lose customers, they lose money. Is it happening with you? Tell me in the chat box ki if your funnel is ready, type FR. If funnel is not ready, type FN. Let me know what is the status here of the audience. So Pramod Kumar, funnel not ready. Akhil ji, funnel not ready. Gurpal ji, funnel not ready. So till now everyone is saying not ready, obviously. So अगर आपका फनल 7 दिन में रेडी हो जाए तो कैसा रहेगा, कैसी फीलिंग रहेगी आपकी? क्योंकि फनल इज द सिस्टम जो डिजिटल बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है, और वो आपका रेडी हो जाए तो व्हाट वुड बी योर फीलिंग? ऑसम, मजा आ जाएगा। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट फ्रॉम मंडे, इट्स नॉट मंडे, 20th अप्रैल। व्हाट इज द डे? आई डिड नॉट चेक। So why a proper funnel is required? Let's discuss this. I told you, but let's go a little formal. So first of all, lead nurturing. Lead comes to our system. और नर्चरिंग क्या होता है? ये नर्चरिंग कितने लोगों को पता है? टाइप PH पता है, और नहीं पता है तो NPH, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू वर्ड। जब मैंने 2020 में फर्स्ट टाइम नर्चरिंग वर्ड सुना था तो इट वॉज न्यू फॉर मी। कि लीड नर्चरिंग क्या होता है, मेरे को लीड भी नहीं पता था, तो नर्चरिंग की तो बात ही क्या है। आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट इज नर्चरिंग। ये तो जब हम आए तब पता चला कि लीड वो होता है जो बाद में हमारा ग्राहक बन सकता है, और लीड जो होता है ग्राहक बनने तक का जो सफर होता है उसके बीच में होती है नर्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लांट अ मैंगो ट्री, आम का पेड़ लगाया, वो फल देगा 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, बट यू हैव टू नर्चर इट। तो दैट वर्ड वॉज न्यू फॉर मी, बट जब डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो थोड़ा सा और टफ लगता है। सो नर्चरिंग मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द लीड, उसको सही डायरेक्शन देना, उसको समझना, फिर उसको सही प्रोडक्ट सर्विस रिकमेंड करना, दैट इज नर्चरिंग। तो फनल जब आपके पास होता है ना गुरपाल जी, तो आप लीड को नर्चर कर पाते हैं, उनको जो आपके ग्राहक बन सकते हैं उनको आप प्रॉपरली गाइड करते हैं। अभी कर रहे हैं क्या आप गाइड? ठीक है ना? तो जर्नी फ्रॉम अवेयरनेस टू कन्वर्जन। जैसे मैंने आपको आज बुलाया फॉर एग्जांपल, और मैं आपको ये फोन बेचना चाहता हूं, तो आज मैं आपको इस फोन की इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर आप नहीं खरीदेंगे, नए हैं, तो फिर मैं आपको 4-5 बातें और बताऊंगा, 4-5 दिन का टाइम भी दूंगा, फिर शायद आप खरीद लें। तो वो जो 4-5 दिन में जो एक्टिविटीज होती हैं, वो पहले आपको जानकारी दी फोन की, फिर कन्वर्जन, आप ग्राहक बन गए, आपने पैसा खर्च करके प्रोडक्ट या सर्विस ले लिया। तो ये होता है नर्चरिंग। अगर नर्चरिंग क्लियर है तो एक बार टाइप करेंगे NC, नर्चरिंग क्लियर है। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट अगर दिमाग में बैठ जाए तो बहुत बड़ा गेम होने वाला है। नर्चरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे आर वेरी एंग्जियस कि जल्दी से मेरा कोर्स बिक जाए, जल्दी से मेरी मेंबरशिप बिक जाए, जल्दी से मेरा प्रोडक्ट्स बिक जाएं। सो वो जो जल्दी वाली बात है ना, वो आपको थोड़ा साइड में रख के नर्चरिंग को ऊपर लाना है। नर्चरिंग कम्स फर्स्ट। क्यों? बिकॉज इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जैसा हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था कि ट्रस्ट बड़ी चीज है, आपको ट्रस्ट बनाना है। एक बार ट्रस्ट आपका मार्केट में बन गया तो फिर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिकते ही रहेंगे, नोबडी कैन स्टॉप देम।
फनल क्यों जरूरी है? दूसरा रीजन है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, कि कौन सी मेरी एक्टिविटीज हैं जिनसे मेरा सेल्स अच्छा हो गया, कौन सी मेरी एक्टिविटीज हैं जो सेल्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो वो एक्टिविटीज जो सेल्स में हेल्पफुल हैं उनको मुझे कंटिन्यू करना है, और जो नहीं है उनको डिसकंटिन्यू करना है। ये तो मैंने अपनी नॉलेज बताई। बट कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज इज द लाइकलीहुड ऑफ टर्निंग लीड्स इनटू पेइंग क्लाइंट्स। तो ऑप्टिमाइज करना मतलब और ज्यादा फाइन ट्यून करना है फनल को। आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, मंडे 20 अप्रैल से हम लाइव 9 बजे बैठ के बनाएंगे। आई विल टेल यू। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रीमलाइंस द क्लाइंट एक्विजिशन प्रोसेस। स्ट्रीमलाइन मतलब सटीक, एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई लीक नहीं होना चाहिए, लूप होल नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी टाइट। ठीक है। और स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स क्या होता है, थोड़ा आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए किस किस को समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको आइडिया होगा पहले से ही। स्केलेबिलिटी क्या होता है? आप मुझे बताइए स्केलेबिलिटी क्या होता है। ये भी एक ऐसा वर्ड है, व्हेन आई हर्ड इट फर्स्ट टाइम। स्केल, स्केल मीन्स हमारे हिसाब से पैमाना। और पैमाना क्या होता है? इतना बड़ा होता है, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो स्केलेबिलिटी मतलब स्केल को और कितना बड़ा किया जा सकता है, तो इसका मतलब बिजनेस को और कितना बड़ा किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। तो प्रॉपर अगर फनल होगा तो आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकेंगे। आप बताओ ईमानदारी से, हम बिजनेस करने आए हैं तो बड़ा करना चाहेंगे अपने बिजनेस को या नहीं करना चाहेंगे? बताइए। जो बढ़ा हुआ बिजनेस है उसको एक हैंडल भी करेंगे, प्लस फनल होगा तभी बिजनेस बड़ा भी हो पाएगा। फनल नहीं होगा तो बढ़ेगा ही नहीं। ये भी एक कड़वा सच है। ठीक है। और जहां तक बिजनेस बिना फनल के बढ़ सकता है तो वो कहलाता है बनिया, बनिया वाला मामला। पर जैसे ही आप सिस्टम्स क्रिएट कर देते हैं, दैट बिकम्स बिजनेस। सो ऑटोमेशन इसमें हो जाता है, सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है, कोचेस ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज हमारा ये पूरा प्रोग्राम कोचेस पर आधारित है या डिजिटल सक्सेस पर आधारित है। तो कोचेस, ठीक है। और आपके पास टाइम बचता है कोचिंग करने के लिए और कंटेंट क्रिएशन करने के लिए। तो ऑटोमेट करना चाहते हैं आप अपने बिजनेस को, आपको अभी आइडिया नहीं है, पर हम 7 दिन में क्या क्या ऑटोमेट कर देंगे, आई विल लेट यू नो। और फनल से आपको पता लगता है कि कितनी लीड्स आ गई हैं हमारे पास, कितनी लीड्स कन्वर्ट हो गई हैं, कितनी लीड्स ने एक्शन लिया है। अगर वो आपको क्लियरली दिखाई दे जाए तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? जस्ट टाइप यस। यू नो भाई, यू हैव गॉट 500 लीड्स नाउ। आउट ऑफ 500, 120 लीड्स आर टेकिंग एक्शन, एंड आउट ऑफ 120, 10 पीपल हैव बॉट माई सर्विसेज। तो इसमें क्या सुधारा जा सकता है वो हमको एक आइडिया हो जाता है, हमें पता होता है। अब न्यूज़पेपर में आप ऐड दे देते हो तो उसका पता नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं, आपको पता लग जाता है। और क्लाइंट रिटेंशन भी इससे इंप्रूव होता है। एस्टेब्लिशेज अ क्लियर पाथ फॉर ऑनगोइंग एंगेजमेंट एंड पोटेंशियल अपसेल्स। जिन लोगों ने आपका 10 लोगों ने खरीद लिया है चीजें, तो आपको पता है कौन 10 लोग हैं, अब उनको आगे क्या बेचा जा सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप। देन फॉस्टर्स अ लॉयल कम्युनिटी अराउंड द कोचेस ऑफरिंग। इट मीन्स फनल में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आपका जो लीड है, जो आपका कस्टमर है पोटेंशियल, उसको ऐसा फील होता है कि आप उसके साथ हो। है ना कमाल की बात? द कस्टमर फील्स, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू वन ईमेल। वन ईमेल, लेट मी शो यू। एक ईमेल दिखाता हूँ आपको। दिस, सो दिस इज माई कोच, माई डायमंड मेंटर, diamond student. Okay, so I think I deleted the email. 1 minute. Deleted email किधर गई भाई? Hmm, hmm, hmm. This is not the one. 1 minute, guys. I just want to show you. Hmm. You can see this email. Can you see? Type Y or yes. This email is from Rachna Daya. She is our um, diamond member.
Digital Coach Ascension member. She has sent this email 40 minutes ago. She has said, "Hey Sunil, 3 days in, 3 दिन हो गए, 3 shifts made, 3 बदलाव हो गए. Today we cement everything." पूरा नाम भी लिखा है मेरा. So do you think कि रचना जी ने मुझे ईमेल लिख के भेजी है कि ऑटोमेटिक लिख के आ गई है? What do you think? मैनुअल है तो एम टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक है तो ए टाइप करेंगे. आपको क्या लगता है? ईमानदारी से, नाम भी लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक होती तो मेरा नाम तो नहीं होता ना यहाँ पे. What do you feel? Tell me. Is this automatic और मैनुअल? है ना? तो देखने में ये बिल्कुल मैनुअल लग रही है, नाम भी लिखा हुआ है, बट दिस इज ऑटोमेटेड. रचना को आइडिया भी नहीं है कि ईमेल कितने बजे गई, किसको पहुंची, और वो पर्सनलाइज्ड ईमेल है. ठीक है. तो इस तरीके से ईमेल्स अगर आपकी सेटअप हो जाए तो आप मुझे बताओ आपको कैसा लगने वाला है. हाउ विल यू फील? और ये मैं करा दूंगा आपकी अगले 7 दिन में. दैट इज माई कमिटमेंट, माई प्रॉमिस. आप कमिटेड हो करने के लिए. और टाइम भी मैंने रात के 9 बजे रखा है, जब सब लोग ज्यादातर फ्री हो जाते हैं. ठीक है. अब जो रात के 9 बजे फ्री नहीं है उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं. कैन यू सी दिस? 1 minute. दैट ईमेल इज गॉन एक्चुअली. सो दिस इज द ईमेल. इतना बड़ा बड़ा ईमेल आते हैं, दे डोंट नो कि उन्होंने ईमेल भेजे भी हैं कि नहीं है. तो एक ईमेल मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने एक बंदे का कोर्स खरीदा था बहुत पहले, सिर्फ ईमेल की वजह से ही खरीद लिया था, क्योंकि वो ईमेल बहुत भेजता था. और इस बंदे ने, मतलब इसका नाम है दीपक कनक राजू. ओके. तो अभी तो ये एक्टिव नहीं है, बट ईमेल्स देखो कितनी भेजता है ये. 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, एक दिन का गैप है, फिर 12 अप्रैल, फिर 14 अप्रैल, फिर 15 अप्रैल. मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे ही इज सेंडिंग एन ईमेल. तो व्हाट डू यू थिंक? ही इज राइटिंग डेली और ही हैज सेटअप वंस. एक बार सेटअप करके छोड़ दिया है, या रोज लिखता है ये बंदा? हेलो सुनील चौधरी, विक्रम ये कर रहा था, वो कर रहा था, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक. सो ही हैज डन इट वंस. एक बार किया है और वो पूरा का पूरा सेटअप चल रहा है. आर यू गेटिंग मी? तो ये सेटअप हम करने वाले हैं गाइस. 1 मिनट. थोड़ा कुछ तो एरर आया है हमारे जूम में, कुछ तो एरर आ गया. अभी ठीक है. कैन यू सी माई स्क्रीन गाइस? ओके. सो क्लाइंट रिटेंशन भी उससे होता है आपका फनल से. लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट. उसके बाद आता है लैंडिंग पेज जो हम बनाएंगे. ये हम पहले दिन करेंगे, डे 1. सबसे पहले 20 अप्रैल को हम निष्क्लैरिटी करेंगे कि हम क्या हैं, जिसका क्लियर है उसको और मजबूत करेंगे. फिर आपका लैंडिंग पेज बनवाएंगे. कितने लोगों को लगता है लैंडिंग पेज बहुत टफ है? तो टाइप कर दीजिए टी, टफ, इन द चैट बॉक्स. और अगर वो लैंडिंग पेज आपका, सोचिए, अगर 15 मिनट में बन जाए, 15 मिनट्स में, तो आपको कैसा फील होगा? 15 मिनट्स में आपका लैंडिंग पेज बन जाए तो कैसा फील होगा? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स. जस्ट 15 मिनट्स आप अपना लैंडिंग पेज बनाने वाले मेरे साथ लाइव. तो लैंडिंग पेज से फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, लोग समझते हैं कि आप क्या ऑफर कर रहे हो. ठीक है. लैंडिंग पेज आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और एंगेज करने वाला होना चाहिए. यानी बंदा आके थोड़ा सा उस पर फंस जाए या रुक जाए. लैंडिंग पेज क्या करता है? लीड कैप्चर करता है. और लैंडिंग पेज जो लीड कैप्चर करता है ना, वो काफी दमदार होती है. ऐसी नहीं होती कि किसी ने भी कर दिया, क्योंकि वहां पे नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर टाइप करना पड़ता है. तो जिसका हल्का सा भी मन है ना, वही करता है, ऐसे कोई भी नहीं कर देता. तो लीड कैप्चर. और लैंडिंग पेज के ऊपर आप बहुत सारी बातें नहीं लिखते हैं कि मैं डिजिटल कोच हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं. नहीं, एक एक्शन देते हैं हम कि हम आपको ये चीज ऑफर कर रहे हैं और ये एक काम करना है आपको, या तो सीट बुक करनी है या खरीदना है. दैट्स इट. तो वो क्लियर कॉल टू एक्शन. करना क्या है लैंडिंग पेज पर आने के बाद? और लैंडिंग पेज डेटा कलेक्शन करता है. तो ये काम हम 20 अप्रैल को करेंगे लाइव. आप मेरे साथ बैठ के करोगे और 1 रुपया खर्च नहीं होगा आपका एक्स्ट्रा. फ्री टूल, फ्री सेटअप. और ये लैंडिंग पेज आप पूरे जीवन इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फ्री, बिना 1 रुपया दिए. कैसा लगेगा आपको, ये आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं. डे 2, 21 अप्रैल को हम रात को 9 बजे बैठेंगे और अपना थैंक यू पेज बनाएंगे. वर्ल्ड क्लास थैंक यू पेज. ठीक है. मेरे साथ. थैंक यू पेज क्या होता है? जब लैंडिंग पेज पे आप, बंदा अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर भर देता है,
तो फिर वो थैंक यू पेज पे जाता है। और थैंक यू पेज कैसा होना चाहिए, आइडियली मॉडर्न हिसाब से, और कितना आसान है उसको बनाना, कितनी देर में बनेगा, 15 से 20 मिनट में बन जाएगा या 40 मिनट में बन जाएगा। और वो आप मेरे साथ बनाएंगे डे 2। लैंडिंग पेज के बाद जब बंदा थैंक यू पेज पे आता है तो हम कहते हैं ओके वेलकम, आप आ चुके हैं हमारे सिस्टम में। ठीक है, उनको सांत्वना, उनको शाबाशी दी जाती है, उनको बताया जाता है कि अगला स्टेप क्या है, अपना ईमेल चेक करना है या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर कुछ और उनको थोड़ा मैसेज देना है तो वहां पर हम अपनी फ्री गाइड दे सकते हैं, उनको थोड़ी वैल्यू समझा सकते हैं। हमें कुछ और बेचना है थैंक यू पेज पे आने के बाद तो वहां बेचने की कोशिश कर सकते हैं। लैंडिंग पेज से फ्री एंट्री मार दी, थैंक यू पेज पे कुछ उसको ऑफर दे सकते हैं। और सोशल शेयरिंग, आप उनको एनकरेज कर सकते हैं कि प्लीज शेयर दिस ऑफर बिकॉज इट इज गोइंग अवे, इफ यू हैव एनी फ्रेंड और कलीग प्लीज शेयर दिस। तो दिस इज द थैंक यू पेज। यहां तक क्लियर है? तो एक बार टाइप कर देंगे सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, इफ इट इज क्लियर टाइप सी। ऑसम, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट एनर्जी। एंड देन आफ्टर दैट हम व्हाट्सएप ग्रुप सेटअप करेंगे। अब नाउ आपको लग सकता है कि सुनील जी व्हाट अ जोक, व्हाट्सएप तो हम कोई भी बना सकता है ग्रुप। द राइट वे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका वो लैंडिंग पेज से कनेक्टेड होना चाहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप के आसपास और भी चीजें होती हैं कि पहले दिन क्या मैसेज जाएगा, दूसरे दिन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मैसेज जाएगा, तीसरे दिन क्या जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ऑफ कैसे करना है, ऑन कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर सेशंस कैसे लेने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कंटेंट कैसे डिलीवर करना है, कम्युनिटी को कैसे एंगेज करके हॉट करना है, और वहां पर आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए एक पावरफुल बिजनेस कम्युनिटी है। व्हाट्सएप से हम मजे लेते रहते हैं नॉर्मल लाइफ में, बट दिस इज पावरफुल बिजनेस कम्युनिटी, पीबीसी। आप चैट में लिख सकते हैं अगर बात आप तक पहुंच गई है। पीबीसी, पावरफुल बिजनेस कम्युनिटी। आज आप अपना माइंड में सेट कर लीजिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब पैसे कमाने के लिए होते हैं, टाइम पास के लिए नहीं होते। उसके बाद मित्रों, माय फेवरेट, दैट इज हाउ आई एड्रेस पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम ईमेल कैंपेन सेटअप करेंगे। गाइस, जब मैं डिजिटल कोचिंग बिजनेस में आया था ना, तो कैन यू सी माय स्क्रीन गाइस? ओके, आई थिंक यू कैन सी। सो व्हेन आई केम टू डिजिटल बिजनेस फर्स्ट टाइम, तो मैंने ईमेल कैंपेन सुना था आशीष, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ईमेल कैंपेन क्या होता है, राइट? देन किसी ने मुझे सिखा भी दिया, समझा भी दिया, एंड बिलीव मी अखिल जी, 2 साल से ज्यादा लगे मुझे ईमेल कैंपेन सेटअप करने में। ऐसा होता है जब कोई आपके सामने बैठ के नहीं करवाता है। तो हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे बंधु बैठे हैं यहाँ पे कि जिनको जब तक बांध के कुछ काम ना करवाएं वो नहीं करते। थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो इमेजिन करो कि अगर आप मेरे साथ ईमेल कैंपेन 2 दिन में बना दो, जो काम मैंने ईमानदारी में 2 साल में किया था, यू आर गोइंग टू डू इन जस्ट 2 days। कैन यू इमेजिन दैट? मेरे हिसाब से माइंड ब्लोइंग है। आई एम वेरी जेलस कि आप मेरे साथ वो काम 2 दिन में करने वाले हो। मैंने उस काम को करने में 2 साल लगाए। सो आर यू इंटरेस्टेड? जस्ट टाइप आई, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू। ये पहला बैच होगा हमारा 7 डे डिजिटल कोच फन चैलेंज का। इसमें आप सीखोगे नर्चरिंग कैसे करनी है ईमेल्स के माध्यम से, हाउ टू डिलीवर द कंटेंट थ्रू ईमेल्स, हाउ टू ऐड वैल्यू थ्रू ईमेल्स, हाउ टू सेल थ्रू ईमेल्स। आप सोचो, आप 1 महीने के लिए गोवा की छुट्टियों पे चले गए और ईमेल्स आपको कमा के दे रहे हैं महीने के 10 लाख। टेल मी हाउ इज दिस पॉसिबल? आपको लग रहा होगा नहीं, नॉट पॉसिबल, बट दिस इज वेरी मच पॉसिबल। एक बार ईमेल्स का गेम आपने समझ लिया ना, आई टोल्ड यू दीपक कनकराजू, दिस पर्सन इज प्लेइंग दिस ईमेल गेम। सबसे पिछले 4-5 साल में बताऊं ना, सबसे कम एक्टिव कोच है वो बंदा, सबसे कम एक्टिव, वीडियोस बनाता है। मैं आपको उसका चैनल दिखाता हूं। मैं आपको ईमेल्स का मैजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीवन, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द ब्यूटी ऑफ ईमेल्स। एक बार लिखेंगे BOE, ब्यूटी ऑफ ईमेल्स। आई विल शो यू।
एक ऐसा बंदा है डिजिटल दीपक जो कंटेंट बनाने को राजी नहीं है. ही इज नॉट रेडी टू मेक कंटेंट. ही इज वेरी लेजी लाइक मी. आई एम वेरी लेजी. आई मेक ओनली 5 to 6 वीडियोज एवरी डे. आई एम वेरी लेजी. आई मेक 5 to 6 वीडियोज एवरी डे. एंड ही इज father of lazy people because he is making money through emails. Last video 6 months ago. Second last video 11 months ago. Third last email 1 year ago. Can you see, guys? In 1 year, 3 videos. Out of three, 2 videos podcast, 1 video AI. Can you see, guys? Tell me yes or no. कैन यू सी कितना आलसी बंदा है यार ये, कितना इनएक्टिव बंदा है ये बंदा. हाँ. एंड दिस पर्सन, इसने क्या किया है, 100-200 ईमेल सेट करके डाल दिए हैं, शायद 500, और वो ईमेल्स जाती रहती हैं और लोग इसका कोर्स खरीदते रहते हैं. एक बार टाइप करेंगे माइंड ब्लोइंग एमबी. ईमेल्स आपका धंधा चलाते हैं. ईमेल्स. कितने लोगों को लग रहा है इट इज माइंड ब्लोइंग? टाइप एमबी इन द चैट बॉक्स. मेरा दिमाग खराब हो जाता भाई ये देख के कि ईमेल से धंधा चल रहा है. यस, बट इट नीड्स पेशेंस. दिस इज अ गेम ऑफ सक्सेस. GOS, गेम ऑफ सक्सेस. ईमेल्स ऐसे जाते हैं जैसे आप उनसे बात कर रहे हो. हाय सुनील, कैसे हो तुम आज? सुनील, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं. सुनील, तुम एक्टिव तो बहुत हो डिजिटल दुनिया में, बट एक्शन नहीं ले रहे हो. ऐसे जाती है ईमेल बार बार, सुनील 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 लिख के. ऐसे ईमेल सेटअप करना चाहते हैं आप, तो डिजिटल कोच फनल चैलेंज में आना है आपको 20 अप्रैल में. ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट बैच. मैं चाहता हूं आप आए और आपके जितने भी साथी डिजिटल दुनिया में सफल होना चाहते हैं उन सबको इन्वाइट कीजिए, बुलाइए, क्योंकि आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, जस्ट लिटिल बिट कमिटमेंट फीस. उसके बाद हमने ईमेल कैंपेन बनाएंगे 2 दिन में, डे 3 और डे 4 में. 4 दिन हो गए. 5वें दिन हम करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑप्टिमाइज. अब आप कहोगे ऑप्टिमाइज क्या होता है? तो लैंडिंग पेज जो हमने बनाया है, जो हमने निश क्लैरिटी ली है, और जो लैंडिंग पेज का लिंक बनाया है, वी आर गोइंग टू पुट इट ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. लीड्स तो वहीं से आएंगी ना भाई. आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए लिंक इन बायो? लिंक इन बायो, वही वही काम करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से. राइट, यू गॉट इट. टाइप LIB, लिंक इन बायो. अगर ये बात आप तक पहुंच गई है तो LIB टाइप करेंगे, लिंक इन बायो. तो हम पूरा उस दिन सोशल मीडिया ही ऑप्टिमाइज करेंगे, और वी आर गोइंग टू यूज AI इन एवरीथिंग. अब बोलने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज AI पावर्ड दिस डेज. आपको अचंबा होगा, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है ये मैंने नहीं बनाई है. व्हाट डू यू थिंक? ये मैंने बनाई है? ये मैंने नहीं बनाई है. ये प्रेजेंटेशन बनाना भी आप सीख जाएंगे एज अ बोनस, और आता भी होगा शायद ऑलरेडी आपको. AI का जमाना है. तो देखिए, आता बहुत कुछ है हमें आज, बट आने से मैटर नहीं है. हमें अपनी नॉलेज को पैसों में कन्वर्ट करना है, हमें अपनी नॉलेज को सर्विस में कन्वर्ट करना है, हमें अपनी नॉलेज से लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करना है. एंड उसके बाद आप समझिए कि अगर आपका फनल होगा, तो आप फनल इंटीग्रेट्स ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स इनटू अ कोहेसिव स्ट्रेटजी. अलग अलग एफर्ट्स होते रहते हैं, बट फनल क्या करता है, आपकी एनर्जी को इकट्ठा कर देता है. एंड यू मस्ट हैव हर्ड, खुले हाथ में ताकत नहीं होती, बंद मुट्ठी में ताकत होती है. सो आपके सारे एफर्ट्स एक जगह आ जाते हैं. एक फनल इंश्योर करता है कि एवरी टच पॉइंट सर्व्स अ पर्पस. कुछ भी लीक नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं है. You are doing everything on purpose, consciously. You are doing everything thoughtfully, and you have a predictable growth, because funnel provides a structured system for acquiring new clients, allows for forecasting and strategic planning. क्योंकि आपको पता है 200 बंदे आए, 120 एक्टिव हुए, 10 ने खरीदा. सो यू नो हाउ इट वर्क्स नाउ. सो आप प्राइसिंग अपनी ऊपर नीचे कर सकते हो, और ऑफर ऊपर नीचे कर सकते हो, सब कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हो. तो देखो, शुरू में सब कुछ सेट नहीं होगा, बट फनल में क्या है ना, ऑप्टिमाइज हो सकता है, चीजों को फाइन ट्यून किया जा सकता है. आप अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें काम कर रही हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है. राइट.
तो फनल आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो टाइप करेंगे SI, सुपर इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब फनल होगा तो जो लीड आएगी उसको प्रॉपर एक जर्नी, एक पाथ मिलेगा कि उसको कहाँ जाना है, उसको रेगुलर टच पॉइंट मिलेगा, उसको रेगुलर वैल्यू मिलेगी, और आपका बिजनेस कैसा बनेगा? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब समझिए कि आज भी काम कर रहा है, कल भी करेगा, एंड इट विल वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव अ फनल। So, if you understand, just type super important SI, एंड एटलीस्ट अभी आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई है फनल की। बट 20 अप्रैल को यू आर गोइंग टू बिल्ड योर फनल विद मी। अब कितने लोग मेरे साथ अपना फनल बनाना चाहते हैं? टाइप कीजिए विद यू, FWY, फनल विद यू। तो ये फनल हम आपके साथ बनाएंगे, और 20 अप्रैल 9 बजे रात को, और उसके बाद 21 अप्रैल, 22, 23, 24, 25। सो तो फ्रॉम 20th अप्रैल टू 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. Right, guys? From 20 अप्रैल to 26 अप्रैल every day 9 PM। अब क्या है ना, कुछ लोगों को नींद आ जाएगी और कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक बार फनल बन जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। सो कितने लोग कमिटेड हैं कि मैं 9 बजे आपके साथ बैठ के फनल बनाऊंगा?